अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका लिया और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों खुश रहा करें ज़बरदस्ती। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका लिया और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों खुश रहा करें ज़बरदस्ती। माँ बाप का ख्याल रखें, साथ साथ माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आपने गला दबाया, आवाज़ नहीं निकल रही। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। कोई देख लेगा, कोई मुझ पे केस कर देगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। माँ बाप का ख्याल रखें, साथ साथ माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आपने गला दबाया, आवाज़ नहीं निकल रही। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। कोई देख लेगा, कोई मुझ पे केस कर देगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मेड इन इंडिया हाइपरलूप बाय इंडियन रेलवेज टू मल्टीप्लाई बाय फास्टर देन 2 times faster than planes। से स्टार्ट करते हैं। ओहो, एरोप्लेन से 2 times। Remember Hyperloop? A dream that many Indians like us saw? Hyperloop didn't materialize, at least not in India. But the matter did not settle yet in the government level. Our Indian Railways is finally gearing up to develop India's first own Hyperloop. India has shown constant efforts to develop a technology rather than importing one from a foreign country. When it comes to railways, you have a lot of examples. Train 18, Kavach, Metro Rails and many more. Now, India will be competing with the rest of the world in the race of making its own Hyperloop. The Indian Railways has partnered with IIT Madras to develop a made-in-India Hyperloop facility. The project involves a test track and a prototype Hyperloop pod estimated to cost around 8.34 crores. A group of 70 students of IIT Madras are working on Aviskar Hyperloop, an effort to develop India's own Hyperloop. They ranked globally in top 10 in the SpaceX Hyperloop pod competition in 2019, the only team from Asia to do so. They were also awarded the Most Scalable Design Award at the European Hyperloop Week 2021. As they approached the Indian Railways in March this year for an investment, the ministry immediately agreed to collaborate and bear the cost for this prestigious effort. Railways will collaborate to develop a contactless pod prototype and also the first of its kind Hyperloop test facility at its Discovery campus at Thaiyur. In 2017, India's then Railway Minister Suresh Prabhu expressed his interest in the Hyperloop technology. Maharashtra ex-CM Devendra Fadnavis and his team even started working to get a Hyperloop in India from Mumbai to Pune, and Virgin Hyperloop started working on exporting their technology to India and develop a track between these cities. But nothing moved since then, but the centre has been closely monitoring the development on Hyperloop, expecting one to develop in India. Under the project Aviskar Hyperloop, we will get a test facility that is at par with the Virgin Hyperloop in United States, but would cost much less. The Hyperloop's low energy requirement has drawn the Indian Railways towards the project, a technology that can help to attain carbon neutrality. For more updates on India's infrastructure, subscribe to our channel MRB. Have a nice day. ओके जी जनाब। अच्छा, हाइपरलूप के हवाले से वैसे भी काफ़ी हमने वीडियोस देखी थी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके थे। और एक और बात, आज मुझे जो नई ताज़ी बात पता चली वो ये कि एरोप्लेन से 2 गुना ज़्यादा स्पीड होती है इसकी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फास्टेस्ट है ये तो हमें पता था, लेकिन इतनी फास्टेस्ट है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है कि पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, हर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वहाँ आती थी, फिर यहाँ आती थी, फिर एशियाई कंट्रीज़ में बाद में आती थी, ठीक है ना। तो ये अब इंडिया एक ऐसा देश बन गया, मैं हैरान हो रहा हूँ कि जो चीज़ दुनिया में हो रही है, मतलब वो दुनिया से भी आगे बढ़ के सबसे पहले उन चीज़ों को लाने की कोशिश है इनकी। अच्छा, मैं ये कहूँगी ये इस बड़े सगीर को लेकर ऐसे मतलब एक मैं ये कहूँगी शायद हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम भी इसी सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो
अब एशियन कंट्रीज में चीज़ें पहले आएंगी, फिर उसको शायद वेस्टर्न कंट्रीज अडॉप्ट करेंगे। आप देखें ना, अभी मैं हाइपरलूप की बात नहीं करी क्योंकि वो और कंट्रीज में भी उसका काम चल रहा है जैसे हमने सुना था, लेकिन आगे आने वाले मज़ीद 40-50 साल के बाद मुझे ये दिख रहा है कि एशियन कंट्रीज़ में वो चीज़ें इन्वेंशन पहले हुआ करेगी, टेक्नोलॉजी पहले आया करेगी, और शायद इंडिया जैसे जो देश हैं उनसे फिर वेस्टर्न कंट्रीज सिखा करेंगे या उनसे अडॉप्ट किया करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हाइपरलूप मेड इन इंडिया, स्टूडेंट जो आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं 70 स्टूडेंट्स बताएं, उन्होंने मिल के ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इसकी मतलब है कि इसको कामयाब तरीन करने की कोशिश है। स्टूडेंट और आईआईटी यानी कि पढ़ने के बाद अपने मुल्क की तरक्की और विकास में भी कदम रख चुके हैं। अच्छा, एक तो ये होता है पढ़ने के बाद यानी कि बन चुके हैं, डिग्री मिल चुकी है, आप जी कुछ कर रहे हैं किसी इदारे के साथ मुंसलिक होके, ये अभी फ़िलहाल स्टूडेंट है। और दूसरी बात ये है कि हमें जैसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना, यूनी में ऐसा होता है प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स करने होते हैं आपको, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने वेल ट्रेंड हो चुके हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स कर करके कि इनको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि ये नई से नई टेक्नोलॉजी को ईजाद कर सकते हैं, नई से नई प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। और मुझे याद आता है कि थोड़े दिनों पहले हमने एक और वीडियो देखी थी 5G के हवाले से, उसमें भी हमने यही सुना था कि IITs जो हैं, डिफरेंट IITs हैं, कोई मुंबई है, कोई मद्रास है, तो वो जो सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मिलकर 5G को इन्वेंट किया है और उसका विकास किया है। तो मैं हैरान हूँ, मैं बहुत हैरान होती हूँ कि स्टूडेंट इतने टैलेंटेड जादूगर हैं ये लोग कि नई से नई टेक्नोलॉजी इस तरीके से ले आते हैं। अच्छा, हुकूमत का काम या इदारों का काम मुल्क को तरक्की दिलाने की मेन बुनियादी ये कनेक्टिविटी। जब आप हाइपरलूप पे आ जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सही, ठीक है ना। इसका एक स्टेशन होगा मेट्रो की तरह का। आपको जब जहाज़ का मतलब क्या है, एरोप्लेन का मतलब क्या है, आपने एक शहर से दूसरे शहर तक, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक किसी को पहुंचाना है, एरोप्लेन। तो एरोप्लेन से 2 गुना स्पीड ज़्यादा हाइपरलूप की, सबसे बेहतरीन चीज़ ये। और उसके बाद आप इतने बड़े इलाके को घेरते हो एयरपोर्ट के लिए, उसके बजाय आप छोटा सा स्टेशन बनाते हो, एक स्टेशन से दूसरा, दूसरे से तीसरा। अच्छा, ये एक टनल की तरह बनी हुई है, एक पाइप है, उस पाइप के अंदर ये स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो आप ये देखें कि आपकी स्पेस देखें कि आपके जो वातावरण कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहा। एक पाइप है, पाइप के साथ पाइप आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, मुंबई टू पुणे, हाँ, कनेक्ट करिए, पाइप से पाइप आगे बढ़ रहा है, उस पाइप के अंदर ये जा रही है। मुझे याद आता है हमने एक फुटेज देखा था, एक वीडियो देखा था जिसमें बाकायदा दिखाई गई थी, किसी वेस्टर्न कंट्री के हवाले से वो फुटेज थी, तो उसमें ये दिखाया गया था कि पूरा पाइप था और उस पाइप के अंदर काफ़ी स्पीडी है ये, और ये छोटा सा कैप्सूल की तरह है, बिल्कुल ऐसा। और ये उसके अंदर ट्रैवल कर रही है, उसके अंदर चल रही है और काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, हत्ता कि जो अंदर के लोग हैं वो भी फील कर पाएंगे इस स्पीड को, ये इतनी स्पीडी है। तो मुझे याद था उस दिन से कि इसके लिए कोई दूसरी मतलब ब्रिजेस की ज़रूरत नहीं है जैसे कि हमें मेट्रोज़ के लिए होती है। जैसे कि एक एरोप्लेन होता है ना जिसमें हम सफ़र करते हैं बिना किसी रुकावट के, तो ये भी बिल्कुल, एक तो देखें स्पीड में वैसे एरोप्लेन से 2 गुना ज़्यादा है, और दूसरी बात ये कि बिना रुकावट के आप सफ़र कर पाओगे। बिल्कुल, कोई आपको टेंशन नहीं है कि आपको ट्रैफिक में रुकना है, कोई आपको टेंशन नहीं है कि आपको इस वजह से रुकना पड़ेगा, उस वजह से रुकना पड़ेगा, कोई भी बैरियर नहीं है एक तरीके से। आपको एक शहर से दूसरा शहर, दूसरे से तीसरा शहर कनेक्ट हो गया, तो मैं कहता हूँ आपने यूँ समझ लो कि मुल्क को तरक्की की तरफ और मज़ीद तेज़ कर दिया। बिल्कुल ऐसे। जब लोग कनेक्ट होते हैं, रास्ते छोटे हो जाते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट भी एक तरह से कनेक्टिविटी है ना। इंटरनेट ने पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली लाया है। सही। और आपको पता है हमारी जो जनरेशन है, हम जिस दौर में जी रहे हैं, शायद ही पूरी दुनिया में जब से लोग आए हैं किसी भी जनरेशन ने एक साथ दुनिया को एकदम से चेंज होता हुआ नहीं देखा। हम देख रहे हैं। हम जो लोग हैं, ये यूँ समझ लो कि इस एक सदी को, पिछली सदी जो गुजरी और इस सदी को, मैं कहता हूँ कि शायद पिछली सदी से, पिछली सदी ना, आप भी पिछली सदी से हैं। कैसे? 92-95 कब पैदा हुई हैं? 98। हाँ, तो पिछली सदी से हो गई ना, 2 साल बच गए थे बस सदी चेंज होने में। तो आप भी पुरानी सदी से, 19वीं सदी से। हाँ ना, 2 सदियाँ जी ली आपने तो एक सदी देख ली ना। मैं जैसे 2001 से हूँ। तो कहने का मतलब आप कौन सी सदी से? आपने 2 सदियाँ देखी। मैं 19वीं सदी से हूँ। खुश हो जाए। 19वीं नहीं, 18वीं सदी से हैं, झूठ नहीं बोले। 1883 आपकी डेट ऑफ बर्थ। ये काट दीजिएगा, काट दीजिए। अच्छा, वी वर सॉरी यार, इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताऊंगी। 1883 खुद देखिए, झूठे इंसान। 85 तो 3 साल
वो 18वीं सदी नहीं है, वो 1885 कौन सी सदी हुई आप मुझे बताइए। अच्छा 1885 नहीं 19 है। खैर बहरहाल कि मैं ये कहूँगा कि हम जिस दौर में जी रहे हैं, सही। इस दौर में सदी तब्दीली, वाली बात खत्म कर देना बेटर था, है ना। तो इस दौर में बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं। सदी में ये कंफ्यूज हो रही हैं, इनका मैथ इतना अच्छा नहीं है। मेरी गाइस मैंने कहा 2000 में अगर कोई है तो वो कौन सी सदी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने 2 सदी 21वीं सदी से, इसी सदी से है ना। हाँ। अब कोई 90s से, जैसे आप हो, बिल्कुल। आप 1980 में या जो भी, 85 से हो, चले ठीक है। बिल्कुल। तो आप कौन सी सदी से हो? आप दूसरी सदी से हो, आप ये दूसरी सदी देख रहे हो, आप ये वाली। हमारे दौर में सदी चेंज हुई है। सही है, इसको यानी आप कि यूँ कर 100 ईयर्स की एक सेंचुरी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप आखिर के थे। हाँ ये सही समझ समझ लें। अब मुझे क्लियर हुआ है। नहीं मुझे टेंशन, मुझे रात में नींद नहीं आती है। मैं बता देता आपको, सुला देता आपको। मैं कुत्ते का बच्चा। ये क्या है? नहीं पंचे मार रहे हैं अजीब तरीके से पीछे। वाइंड अप दे यार, हाइपर लूप के ऊपर थे हम। कहाँ आपको कौन से लूप? हाइपर लूप। खैर बहरहाल कि इस दौर में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं एकदम से। मतलब कहाँ से दुनिया थी और कहाँ चली गई। बहुत सारी नई इजादें हुई, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट आया, मोबाइल आए, कंप्यूटर आए। एक जगह से दूसरी जगह कोई बात नहीं कर पाता था, तो एक शख्स दूसरी जगह से दूसरे कंट्री में वीडियो कॉल पे डायरेक्ट बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि शायद जो कुछ अरसे पहले 50-60 साल पहले मूवीज़ में बताया जाता था, साइंस फिक्शन मूवीज़ में, वो आज हम जी रहे हैं इतना जल्दी। अच्छा एक और बिल्कुल बोलते थे कामयाबी की कुंजी क्या है, तो अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि आज की प्रोग्रेस के लिए, आज जो दुनिया तरक्की कर रही है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके इंटरनेट का एक्सेस हो और अच्छे से अच्छा हो, बेहतरीन से बेहतरीन हो, फास्ट से फास्ट हो, तो आप तरक्की करते हो, आपका मुल्क तरक्की करता है, आपके लोग तरक्की करते हैं। तो मैं हैरान हूँ कि आज भी हम 4G में फंसे हुए हैं। 5G का कोई दूर दूर तक पता नहीं है। 1-2 लोगों से मैंने उनके मुंह से सुना कि वो कह रहे थे हमारे यहाँ भी 5G लॉन्च होने वाला था बिल्कुल कुछ अर्से पहले। अच्छा इंटरनेट भी कनेक्टिविटी है, रेलवे भी, हाइपर लूप भी, एरोप्लेन भी, ये सारे कनेक्टिविटी का। इंटरनेट कहीं काम आता है, कनेक्टिविटी कहीं पे इंसान को फिज़िकली जाना होता है, कहीं पे माल और मटेरियल जाना होता है, प्रोडक्ट जानी होती है। तो गवर्नमेंट ने अगर एक शहर से दूसरे शहर कनेक्ट कर दिए तो बाकी मैं कहता हूँ आवाम का काम है तरक्की करना। तो और आपने ये कहा था तरक्की करने से रोका नहीं जा सकता उनको। नहीं रोका जा सकता क्योंकि तो। देखिए रोड आवाम नहीं बना रहे होते कि यार मुझे वहाँ से वहाँ जाना, मैं रोड बना लूँ। तो रोड आवाम नहीं बनाते, लेकिन ये है कि रोड बने हुए होते हैं तो कारखाने ज़रूर बनने लग जाते हैं, फैक्ट्री ज़रूर बनती है। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।